डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। हे गाइस, दिस इज़ नवदीप। सो सबसे पहले हम सैम्पल आंसर देखेंगे, उसके बाद मैं उसे एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी अलॉन्ग विद द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। Well, few precious moments I have in my mind which are unforgettable. I would give my best to explain my initial day as I was a little girl and most of the things I have forgotten. On the very first day when I went to school, it felt like visiting a new planet. I was sitting in a large room which was full of things called desks, carpet, and walls that were really different from the home. Again, like being on the new planet, although I didn't know any of them, still I was de-stressed about whatever happening around me. I vividly remember a kid sitting in front of me had tears in his eyes. He was upset and causing a big scene, for example, kicking around, fighting against his mother as she tried to put him on the mat where all the other children were sitting on. After making all efforts, still he had to attend school. After that, I saw all other learners. They seemed as curious as I was. Within few minutes, teacher entered the classroom and she began giving some instructions. I didn't pay attention to her and started consuming a meal that my mother packed in lunch box. My class tutor took my lunch box from me on the spot and she politely said that I should only listen to her. Moreover, during recess, after doing lunch, I enjoyed playing in the playground. There were some swings, seesaws, and slides. I and my classmates started playing on the slides. I recall a girl stood on the swim. She wanted to show off to others that she could stand on swim. But it was quite dangerous. She slipped, fell, and landed on the ground. My class teacher applied medicine for her, gave her an earful, and scolded her for that dangerous act. Apart from this, I made a friend. She was as quiet as a mouse all the day. Probably at the end of the day, I shared my pencil or eraser with her, and that's how our conversations began. The most interesting thing is that she is still my bosom friend. Her name is Kiran, and I proudly call her my childhood friend. Further, the last bell went at 3 in the afternoon and the classes got over. Everyone felt on top of the world. I also took my bag. My father, who had come to pick me up, met me at school gate and we left for home. Eventually, I had ants in my pants while returning back to home because my mother promised me that if I would spend my whole day happily, I would get my favorite sweet dish, gulab jamun. Actually, it's an Indian mouth-watering dish which is round in shape and of brown color. I told her about my day till end and how I had already made a best friend. तो क्या है कि फ्यू प्रीशियस मोमेंट्स मतलब कुछ कीमती पल हैं मेरे दिमाग में अभी भी जो कि अनफॉर्गेटेबल हैं, मतलब मेमोरेबल हैं। आप मेमोरेबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो अनफॉर्गेटेबल की जगह। तो मैं अपना बेस्ट दूंगी अपने पहले दिन को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला दिन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनिशियल डे एज, जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची थी तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक मैं भूल चुकी हूँ। ऑन द वेरी फर्स्ट डे मतलब बिल्कुल पहले दिन मैं स्कूल गई और मुझे क्या फीलिंग आ रही थी जैसे कि मैं किसी और प्लेनेट पे आ चुकी हूँ। वैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और प्लेनेट पे आ चुकी हूँ। बिल्कुल डिफरेंट था सब कुछ। तो मैं एक बड़े से कमरे में बैठी हुई थी जो कि कुछ अलग ही चीज़ों के साथ फुल हुआ पड़ा था, जैसे कि डेस्क हो गए, कारपेट हो गई, वॉल्स हो गई। डेस्क मतलब कुछ बेंचेस होते थे वहाँ पे, कारपेट नीचे जो बिछाई होती है चादर टाइप। तो वॉल्स हो गई हैं, वॉल्स के ऊपर बहुत सारी डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, आपको पता ही है, जो सब छोटे बच्चे जिन रूम्स में होते हैं। तो वो सब कुछ क्या था, डिफरेंट था मेरे घर से। अगेन लाइक बीइंग ऑन अ न्यू प्लैनेट, फिर से मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक न्यू प्लैनेट्स पे हूँ। हालांकि हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ है क्या। स्टिल है ना, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, काम थी। जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा था उसको लेके मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। डिस्ट्रेस का मतलब है काम्ड, रिलैक्स। आई विविडली रिमेंबर, मतलब
मुझे क्लियरली साफ साफ याद है कि एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ था और उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे, बहुत ही अपसेट था और कॉजिंग अ बिग सीन, मतलब जैसे बच्चे करते ही हैं, फर्स्ट डे ड्रामा क्रिएट कर रहा था। फॉर एग्जांपल इधर उधर किक कर रहा था, अपनी मम्मी के साथ झगड़ा करी जा रहा था क्योंकि उसकी मम्मी ज़बरदस्ती उसको उस मैट पे बिठाने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे बाकी बच्चे बैठे हुए थे, है ना। तो उसने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए लेकिन स्टिल एट द एंड उसको स्कूल तो अटेंड करना ही पड़ा। उसके बाद मैंने अदर लर्नर्स को देखा, बाकी जो मेरे क्लासमेट्स बैठे हुए थे, मैंने रिफ्रेश कर दिया थोड़ा, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज़ करते जाओ तो अच्छा रहता है। तो वो भी मुझे वैसे ही मेरे जैसे ही एक्साइटेड दिख रहे थे, जैसे कि मैं उत्सुक हूँ वैसे ही मुझे वो दिख रहे थे। थोड़े ही टाइम में हमारी जो क्लास टीचर है वो भी एंटर हो गई क्लासरूम में, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी, कुछ समझा रही थी, जैसे कि अंदर आना है तो मे आई कम इन करके आना है, वॉशरूम जाना है तो कैसे बोल के जाना है। तो मैंने तो बिल्कुल उनको अटेंशन नहीं दी। तो मैंने क्या किया, अपना लंच बॉक्स से निकाला, खाना खाना शुरू कर दिया जो मेरी मम्मी ने पैक किया हुआ था। तो उसी टाइम पे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट जो मेरी क्लास टीचर हैं, ट्यूटर है, उन्होंने मेरे से लंच पकड़ लिया और प्यार से बोला, पोलाइटली बोला कि मुझे उन्हें सुनना चाहिए जो कुछ भी वो बोल रही हैं। मोर ओवर हो गया, फर्दर मोर, अपार्ट फ्रॉम दिस, एडिशन टू दिस। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, उन्हें यूज़ करते रहा करो, बजाय कि आप एंड कुछ करते हो ना, उसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया करो। और सबसे अच्छा टाइम है ये सब यूज़ करने का जब आपका टॉपिक थोड़ा सा टर्न ले रहा हो, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ और बात कर रही थी, अभी थोड़ा सा, जैसे अभी प्लेग्राउंड पे आने वाली हूँ, पहले क्लास में थी तो थोड़ा सा टर्न ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो आप समझ पाओगे कब कब कनेक्टर्स यूज़ करने चाहिए। तो ये एक अच्छा है कि अगर आप कनेक्टर्स यूज़ करोगे अच्छी स्पीकिंग बनेगी। और तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग रिसेस टाइम क्या हुआ कि हमने प्लेग्राउंड में खेलना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे स्विंग्स थे, सीसास थे, स्लाइड्स थी। मैंने और मेरी क्लासमेट्स ने खेलना शुरू कर दिया स्विंग्स के ऊपर या स्लाइड्स के ऊपर, लिख लो कुछ भी लिख लो। आई रिकॉल, मतलब मुझे याद है, एक लड़की ने स्विंग के ऊपर, स्विंग जो होती है वो पंजाबी में अगर मीनिंग बताऊँ तो वो होता है पिंगा नु बोलते हैं स्विंग। तो स्विंग के ऊपर वो खड़ी हो गई जस्ट शो ऑफ करने के लिए कि मैं हाँ खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। वो स्लिप हो गई वहाँ से और गिर गई, सीधा ग्राउंड के ऊपर लैंड हो गई। तो हमारी क्लास टीचर जो थी उन्होंने फिर मेडिसिन अप्लाई की और उसे डांटा भी। ईयरफुल का मीनिंग यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे कान नहीं खींच देते हो बच्चों का, वहाँ से आप इसका मीनिंग अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। ईयरफुल, स्कोल्डेड, सिमिलर ही है मीनिंग वैसे, कि उसको डांटा कि ऐसा जो डेंजरस एक्ट है, ख़तरनाक काम ऐसे दोबारा नहीं करने हैं, क्योंकि वो पहला दिन है, इतनी छोटी बच्ची और बिल्कुल उसके ऊपर खड़ी हो गई स्विंग्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस आई मेड अ फ्रेंड। अब देखो, पहले मैं प्लेग्राउंड की बात कर रही थी, अभी मैं एक फ्रेंड के बारे में बात करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया है ना यहाँ पे, तो मैंने यूज़ किया है अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ये, ठीक है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। अच्छा है कि करते जाओ, ठीक है। अगर उसके साथ वाला ही कुछ है लेकिन बहुत सारी बात हो चुकी है, अब ऑलरेडी पहले ही बहुत सारा बोल चुके हो, फिर से बोलना चाहते हो, फिर आप फर्दर मोर बोल सकते हो, एडिशनली, एडिशन टू दिस, ऑल्सो करके बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैंने एक फ्रेंड बनाई। वो सुबह से सारा दिन तो वो बहुत ही शांत थी। यहाँ पे शांत को मैंने लिखा है एज क्वाइट एज अ माउस, मतलब एक चूहे की तरह शांति से बैठी हुई थी। तो प्रॉबेबली, मे बी, शायद मैंने उसके साथ कुछ पेंसिल या फिर इरेज़र वगैरह शेयर की, जिससे हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। तो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि वो अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड को मैंने रिप्लेस किया है बूजम फ्रेंड। तो उसका नाम है किरण, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फर्दर आगे लास्ट बेल बजी रिंग की 3 बजे के करीब, और सारी क्लासेस ख़त्म हो गई। एवरीवन फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब वेरी हैप्पी। हर कोई बहुत ही खुश था। मैंने भी अपना बैग उठाया और मेरे फादर जो थे स्कूल गेट पे मुझे लेने के लिए आ गए और हमने घर की ओर चलना शुरू कर दिया। इवेंचुअली मतलब एट द एंड या फिर फाइनली
आई हैड एंड्स इन माई पैंट्स। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैं घर वापस जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सारा दिन अपना हैप्पीली मतलब खुशी खुशी व्यतीत करूँगी, अपना सारा दिन हैप्पीली स्पेंड करूँगी, तो वो मेरे लिए गुलाब जामुन तैयार करेंगी, जो कि एक स्वीट डिश है। अब मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन वर्ड यूज़ किया है जो कि हिंदी का है, ठीक है। तो अगर आपने हमने ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करना है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला फॉरेनर हो या फिर इंडियन भी हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उसे, ठीक है, क्योंकि उन्हें शायद ना पता हो उस चीज़ के बारे में। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये एक माउथ वाटरिंग डिश है, इंडियन डिश है, स्वीट डिश है। माउथ वाटरिंग डिश मतलब डिलीशियस डिश है। तो ये राउंड इन शेप होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो थोड़ा सा 1-2 लाइन में ही बताया है। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को सारा दिन कैसे व्यतीत किया वो बताया, और ये भी बताया कि मैंने एक फ़्रेंड बना भी ली है।